Hi dear students, myself Pooja Patwar and today we are going to read our last chapter from the book Beehive. This is lesson number 11. The name of the lesson is If I Were You, and this chapter is in the form of a play. This play is written by Douglas James. So before I start, I would like to give a brief introduction to the chapter, to the story. So this chapter is in the form of a drama. What is a drama? Drama is a piece of writing in which the characters are written, the dialects of the characters are given in front of them. Mostly the characters are there, so we are having two characters in it. There are two only and only two characters, and their dialects have been written in front of them. And this drama, or any of the drama that is written or play, is such kind of writing that can be enacted on a stage. So the dialects are given, and whoever enacts the character, he speaks the dialogue that are given in front of their characters, right? So let us start reading this and know more about this. So we are having two main characters in this play. One is Garrett and other one is Intruder. So Intruder क्या होता है? Intruder is a घुसपैठिया जो कि क्रिमिनल होता है, किसी के घर में ऐसे ही घुस आ जाता है. And Garrett is the main character of the play. So he's a playwright, and he's somewhere going, and an intruder enters his home and he tries to kill him. He wants to kill him and take on his identity. So what happens and how the things happen, how the things take place, we will read the story, we will read the play and acknowledge about that. So let us start reading. In the beginning of the play, we have been given a small introduction. Garrett lives alone in a lonely cottage. An intruder who is a criminal enters his cottage. He intends to murder Garrett and take on his identity. Does he succeed? सो गैरेट जो है वो अकेला रहता है कॉटेज में. एक इंट्रूडर है जो कि क्रिमिनल है, उसके कॉटेज में आ जाता है. वो गैरेट को मर्डर करना चाहता है, उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है कि वो क्या सक्सेसफुल होता है, अगर गैरेट उससे बचता है तो कैसे बचता है, ये पढ़ के पता चलेगा. सो वी हैव बीन गिवन द सीन एज वेल. सो व्हाट इज़ द सीन? सीन ऐसा होता है, वो सारी सिचुएशन और कंडीशन, मतलब सारा हमें सेटअप बताया होता है सीन में कि कहाँ क्या सेटअप है, उस जगह पे क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या क्या कौन कौन से लोग हैं और लोग क्या क्या कर रहे हैं, राइट? सो हियर द सीन इज़ गिवन अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर. कॉटेज के अंदर का हिस्सा है. देर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन्ड. एक एंट्रेंस है बैक राइट में, राइट की तरफ, जिसके ऊपर कर्टेन डाला हुआ है. अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी ए प्रैक्टिकल डोर. तो लेफ्ट की तरफ जो डोर है वो प्रैक्टिकल डोर है जिसको यूज़ किया जाता है. द फर्नीचर इज सिंपल कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट. फर्नीचर ज़्यादा लग्जरी नहीं है, सिंपल सा है, जिसमें लेफ्ट की तरफ एक टेबल पड़ा हुआ है, एक चेयर है, और चेयर एक या टू चेयर्स हैं, एंड अ दीवान. दीवान क्या होता है? सिंगल बेड, राइट? सो दीवान पड़ा हुआ है राइट की तरफ. ऑन द टेबल इज़ अ टेलीफोन. टेबल के ऊपर एक टेलीफोन पड़ा हुआ है. सो दिस इज़ द सेटअप दैट वी हैव बीन गिवन. Okay. So let us start reading the dialogues now. When the curtain rises, Garrett is standing by the table making a phone call. So as I told you earlier, तो हमें बताया होता है कि जब कर्टेन उठता है, पर्दा उठता है, जब ऑडियंस के सामने प्ले स्टार्ट होता है, तो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं. तो जहाँ यहाँ पे जब कर्टेन उठता है तो गैरेट जो है वो टेबल के पास खड़ा है और वो क्या कर रहा है? किसी को फ़ोन कर रहा है, फ़ोन कॉल कर रहा है. मीडियम हाइट है उसकी, ठीक है. हॉर्न रिम्ड ग्लासेस पहने हुए. हॉर्न रिम्ड कैसे होते हैं? ऐसे हॉर्न्स की तरह. तो उसके हॉर्न रिम्ड ग्लासेस हैं, चश्मा पहना हुआ है. ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लॉन्च सूट एंड अ ग्रेट कोट. लॉन्च सूट पहना हुआ है, ग्रेट कोट पहना हुआ है. उसकी वॉइस जो है वो कल्चर्ड है. कल्चर्ड मीन्स सोफिस्टिकेटेड, एजुकेटेड. उसको उसकी आवाज़ को सुन के पता चलता है दैट ही इज़ एन एजुकेटेड पर्सन. कल्चर्ड है, सॉफ्ट स्पोकन है, राइट? सो नाउ Garrett will tell him to phone up directly. I must know. Yes, I expect I'll still be here, but you mustn't count on that. In about 10 minutes time, right हो, goodbye. So he says कि वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा है और उसको बोल रहा है कि उसको बोलो डायरेक्टली मुझे कॉल करे.
मुझे भी पता होना चाहिए। हाँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मैं यहीं पे हूँगा, बट उस पे तुम ट्रस्ट ना करो, मतलब उस पे कोई विश्वास नहीं है, मेरा कोई भरोसा नहीं है। 10 मिनट्स के टाइम में, ठीक है, राइट हो गुड बाय। सो राइट गुड बाय कह के वो फ़ोन जो है वो रख देता है। गैरेट, सॉरी, ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट। दीवान की तरफ जाता है, फ़ोन रख के वो लेफ्ट की तरफ चला जाता है। वेयर देयर इज़ अ ट्रैवलिंग बैग। ट्रैवलिंग बैग पड़ा हुआ है, उसमें वो पैकिंग करनी स्टार्ट कर देता है। वाइल्स ही इज thus engaged, another man similar in build to Garrett enters from the right silently। तो जब वो अपना engaged है पैकिंग में, एक और इंसान जिसका कि इन बिल्ट, मतलब बिल्ट इन बिल्ट का मतलब कि फिजिकली, फिजिकल उसकी जो अपेयरेंस है वो किसके जैसी है, गैरेट के जैसी है, ठीक है। वो एंट्रेंस की एंटर राइट की तरफ से एंटर करता है चुपचाप। उसके हाथ में ही इज हैविंग अ रिवॉल्वर। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट। तो उसने एक ओवरकोट पहना हुआ है, एक सॉफ्ट हैट पहनी हुई है। ही बम्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल। गलती से वो जाके टेबल में जा लगता है। एंड एट द साउंड गैरेट टर्न्स क्विकली। और जो शोर होता है उसकी वजह से जो गैरेट होता है वो अचानक से फटाफट से क्विकली टर्न करता है। गैरेट प्लीजेंटली, वाई दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर। तो वो मिस्टर कहने का मतलब क्या है कि ही वॉन्ट्स टू नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, ही डजंट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन। तो बड़ा खुश मिजाज होके सरप्राइज होके उसको बोलता है कि क्यों, ये तो सरप्राइज है कि आप कौन हो। इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, पुट दोज पॉज अप। तो वो कहता है, इंट्रूडर ने कहा कि मुझे खुशी है कि तुम मुझे देख के खुश है, मगर मुझे नहीं लगता तुम्हारी ये जो खुशी है वो ज़्यादा टाइम तक रहेगी। अपने पॉज को अप करो। पॉज क्या होते हैं, हाथ। यहाँ पे उसके जो हैंड्स हैं गैरेट के, उसको वो पॉज कह रहा है कि सरेंडर कर दो। गैरेट, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स बट। तो वो कहता है कि मेलोड्रामेटिक है। मेलोड्रामेटिक मीन्स ये रियल नहीं लग रहा है, आर्टिफिशियल लग रहा है, ओरिजिनल नहीं लग रहा है, कि ओवर एक्टिंग लग रही है शायद। पर इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम एंड, तो इंट्रूडर बोलता है कि कोश शांत होने की कोशिश करो। और उसमें गैरेट उसको इंटरप्ट कर देता है, नॉन चैलेंज इज योर वर्ड आई थिंक। वो कहता है शायद तुम ये कहना चाहते हो नॉन शैलेंट। नॉन शैलेंट क्या होता है, नॉट वेरी एक्साइटेड। तो कहता तुम शायद कि ये कहना चाहते हो कि कौन शांत रहो और ज़्यादा एक्साइटमेंट ना दिखाओ, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। Intruder, thanks a lot. You will soon stop being smart. I'll make you crawl. I want to know a few things. See. तो वो कहता बहुत थैंक यू कि तुमने मेरे सेंटेंस को कंप्लीट किया। अब स्मार्ट बनना, तुम जो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करो, जल्दी ही तुम बंद कर दोगे। मैं तुम्हें क्रॉल करने पे मजबूर कर दूंगा। क्रॉल मतलब रेंगना। तो कौन रेंगता है, कौन क्रॉल करता है, स्नेक्स जो हैं वो क्रॉल करता है। तो वो कहता है मैं तुम्हें अभी क्रॉल करने पे मजबूर कर दूंगा। मैं तुमसे कुछ एक चीज़ें जानना चाहता हूँ। Then Garrett says, anything you like. I know all the answers, but before we begin, I should like to change my position. You may be comfortable, but I am not. कहता जो भी तुम जानना चाहो, मुझे सारे आंसर्स पता है, बट उससे पहले कि तुम मुझसे बातें पूछनी शुरू करो, मैं अपनी पोजीशन चेंज करना चाहूँगा, क्योंकि तुम तो शायद आराम से खड़े हो, बट मैं तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। Intruder, sit down there and no funny business. Motions to a chair and seats himself on the divan by the bed. Now then, we will have a nice little talk about yourself. तो वो कहता है वहाँ बैठ जाओ, कोई मजाक नहीं करना है, कुछ हरकत करने की कोशिश नहीं करना है। और वो क्या करता है, एक चेयर को हिलाता है और अपने आप को दीवान पे बिठा लेता है, जो कि बिल्कुल बैग पे के पास बैठ जाता है। फिर वो कहता है कि अब हम तुम्हारे बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। गैरेट, एट लास्ट अ सिंपैथिक ऑडियंस, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, how as a child I was stolen by the gypsies, and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage. How, वो कहता फाइनली मुझे एक सिंपेथेटिक ऑडियंस मिली। ऑडियंस मीन्स लिसनर। तो कहता फाइनली मुझे एक ऐसा इंसान मिला जो कि मुझे आराम से, जिसको मेरे पर रहम आता है, तरस आता है और मेरी बात को सुनना चाहता है। वो फिर कह रहा है, गैरेट्स कहता है
कि तुम्हें मैं अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी बताऊंगा, कैसे जब मैं बच्चा था मुझे जिप्सीज ने चुरा लिया था। जिप्सीज कौन होते हैं? नोमैड्स। नोमैड्स मतलब जो एक जगह पे टिक के नहीं रहते हैं। तो वो कहता है कि मैं जब छोटा था मुझे जिप्सीज ने चुरा लिया था, और इस एज पे 32 की एज पे मैं यहाँ पे अपनी कॉटेज में, एसेक्स कॉटेज में अकेला क्यों रह रहा हूँ। तो एसेक्स कॉटेज जो उसकी कॉटेज का उसके घर का नाम है। देन ही सेज इंट्रूडर। इंट्रूडर क्या बोलता है? कीप इट योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन। यू लिव हियर अलोन वेल डू यू। तो वो कहता है कि अपनी बातें अपने पास ही रखो, मैं जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उसके सिर्फ उसका आंसर दो। तुम यहाँ अकेले रहते हो क्या? तुम रहते हो? गैरेट। गैरेट क्या कहता है? आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी एंड नॉट आस्किंग मी अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर। तो वो कहता है मुझे माफ़ करिए, गैरेट ने कहा, तो मुझे लगा कि शायद तुम मुझसे पूछ रहे हो, मुझे बता रहे हो, मेरे से पूछ नहीं रहे। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन मीन्स ग्रामेटिकल करेक्शन। तो वो कहता है ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ग्रामेटिकल करेक्शन है कि तुम्हारी जो वॉइस है वो मुझे जानी पहचानी नहीं है। तो मुझे जिस लहजे से तुमने बोला मुझे ये लगा कि तुम मुझे बता रहे हो कि हम तुम्हारे में बात कर रहे हैं, और मुझे ये नहीं लगा कि तुम मुझसे ये कह रहे हो, मुझे क्वेश्चन कर रहे हो कि तुम यहाँ अकेले रहते हो। ठीक है। तो नाउ इंट्रूडर सेज विद एम्फेसिस, अब वो जोर डाल के बोलता है, डू यू लिव हियर अलोन। तो मैं आपको इन्फ्लेक्शन थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब ग्रामेटिकली उसको सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए क्वेश्चन जैसे पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ किए जाते हैं। सपोज़ आपने क्या किया, आपने मैं बोल रही हूँ यू लिव हेयर अलोन, तो ये क्या हो गया? ये स्टेटमेंट हो गई। अगर मैंने क्वेश्चन पूछना है तो मैं स्ट्रेस दूंगी, जैसे यू लिव हेयर अलोन, तो ये क्या हो गया? इट्स अ क्वेश्चन। तो उसमें मैंने स्ट्रेस दिया जिससे पता लगा कि इट्स अ क्वेश्चन। तो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि मुझे लगा कि तुम मुझे बता रहे हो ना कि मेरे से पूछ रहे हो। अब की बार इंट्रूडर ने जोर डाल के बोला कि डू यू लिव हेयर अलोन, कि तुम यहाँ अकेले रहते हो। गैरेट। एंड इफ आई डोंट आंसर, कहता अगर मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ना दूँ। इंट्रूडर, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। तो वो कहता मुझे लगता है तुम में इतनी तो अकल हैगी होएगी कि तुम अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते हो, जख्मी नहीं, अपने आप को दुख नहीं पहुंचाना चाहते। गैरेट, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन दैन इन द मेरे डिज़ायर टू डू सो। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर। तो वो कहता है, अब गैरेट जो है वो उसको अपनी बातों में उलझा रहा है इंट्रूडर को, वो बातों को गोल गोल घुमा रहा है। वो कहता है आई थिंक गुड सेंस, कहता मुझे लगता है अकल इसमें ज़्यादा दिखाई देती है, इन द एबिलिटी, मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन, के पेन को अगर आप पेन से बचते हो, उससे पेन को अवॉइड करने की जो आपकी एबिलिटी है उसमें ज़्यादा दिखाई जाती है देन इन द मेयर डिज़ायर टू डू सो, कि अगर कोई इंसान है उसको सिर्फ बचने की इच्छा रखता है, उससे ज़्यादा सेंस किस में दिखाई देती है? अगर वो अपने आप को उससे परे रखने की, उस जो पेन्स को अवॉइड करने की जो उसमें एबिलिटी है। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर। तो वो दोबारा उसका नाम जानना चाहता है, उसको उसका नाम नहीं पता है, तो वो दोबारा इनडायरेक्टली उससे नाम निकलवाना चाहता है। इंट्रूडर क्या कहता है? नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर गैरेट, एंड व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स। वो कहता है मेरे नाम के छोड़ो, मुझे तुम्हारा नाम ज़्यादा अच्छा लगता है मिस्टर गैरेट। तो वो पूछ रहा है व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स। क्रिश्चियन नेम्स कौन से होते हैं? व्हेन अ चाइल्ड इज़ टेकन टू द चर्च, जब बच्चा कोई पैदा होता है क्रिश्चियंस में, उसको चर्च में लेके जाया जाता है, उसको वहाँ पे जैसे बैप्टाइज किया जाता है, तो क्रिश्चियन बनाया जाता है, उस टाइम पे उसको एक नाम दिया जाता है, उसको क्रिश्चियन नेम बोलते हैं। ठीक है। तो गैरेट से उसका क्रिश्चियन नेम पूछ रहा है जो इंट्रूडर है। तो इंट्रूडर सेज कि तुम्हारे क्रिश्चियन नेम्स कौन से हैं? गैरेट सेज विंसेंट चार्ल्स। इंट्रूडर सेज डू यू रन अ कार, तो तुम्हारे पास कार है? गैरेट सेज नो। That's a lie. You are not dealing with a fool. I'm as smart as you and smarter. And I know you run a car. Better be careful, wise guy. तो कहता तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो बेवकूफ़ नहीं है, मैं तुम्हारे जितना ही स्मार्ट हूँ, इनफैक्ट तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। एंड मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक कार है। तो उसको बोलता है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं क्वेश्चन पूछूँ तो केयरफुल रहना और ध्यान से आंसर देना। गैरेट, आर यू अमेरिकन और इज इट दैट merely a clever imitation?
तो वो कहता तुम अमेरिकन हो या सिर्फ अमेरिकन होने की कॉपी कर रहे हो। इमिटेशन मीन्स कॉपी। तो वो कहता सिर्फ दिखावा कर रहे हो अमेरिकन होने की या सच में तुम अमेरिकन हो। इंट्रूडर, लिसन, दिस गन इज़ नो टॉय, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स। इंट्रूडर इसको कहता है सुनो, ये जो गन है ना ये कोई खिलौना नहीं है, मैं तुम्हें बिना मारे भी तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ, ज़ख्मी कर सकता हूँ, और मैं फिर भी ये तुमसे अपने आंसर्स निकलवा सकता हूँ। गैरेट, ऑफ कोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। कहता अगर तुम ऐसा ही चाहते हो मैं खुशी खुशी तुम्हारी हेल्प करूँगा। असिस्ट मतलब हेल्प करना। आई डू पोजेस अ कार एंड इट्स इन द गैराज राउंड द कॉर्नर। कहता वो जो ये मेरे पास कार है और ये जो कॉर्नर में गैराज है उसमें रखी हुई है। इंट्रूडर, दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हियर। तो वो कहता अब ठीक है, अब यहाँ पे लोग अक्सर आते जाते हैं। Garrett, very rarely. Surprisingly, few people take the trouble to visit me. There's a baker and the greengrocer, and of course, and then there's a milkman. Quite charming, but no one so interesting as yourself. गैरेट के तो बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे, और सरप्राइजिंग, बड़ी सरप्राइज होने वाली बात है कि बड़े कम लोग हैं जो यहाँ पे आने की तकलीफ़ लेते हैं। और एक बेकर है जो ब्रेड देने जाता है आता है, ग्रीन ग्रोसर है हरी सब्जियां देने आता है, और एक मिल्कमैन है जो कि आता है, वो बहुत चार्मिंग है, मगर कोई भी उनमें से इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है ऐसे जितने के तुम हो। इंट्रूडर, आई हैपन नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल मीन्स सेलर। तो वो कहता कि मुझे पता चला है कि तुम बहुत यहाँ पे जो सेलर हैं जो छोटी मोटी चीज़ें बेचते हैं वो तुम्हें यहाँ पे कभी नहीं आते तुमसे मिलने के लिए या तुम्हें कुछ देने के लिए। गैरेट, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यू हैव बीन सो मॉडेस्ट। तो वो कहता कि मुझे लगता है, गैरेट ने कहा कि मुझे लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत ज़्यादा ट्रबल करके मेरे बारे में नॉलेज गेन किया है। तो वो कहता जैसे अब तो तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो, अपने बारे में भी कुछ बोलो। यू हैव बिन सो मॉडेस्ट मीन्स हम्बल। और कैसे वो हम्बल है कि वो अपने बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा और गैरेट के बारे में ही बातें करे जा रहा है। इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी, यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम the top of the class round here. I've got brains and I use them. That's how I have got here where I have. तो वो कहता मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ, तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट हो, बट मैं हम दोनों में से, मतलब यहाँ पे इस पल जो इंसान खड़े हैं हम दोनों में से मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मेरे पास दिमाग है और उसको मैं यूज़ भी करता हूँ, और उसी दिमाग को यूज़ करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। Garrett, and where precisely have you got? It didn't require a great brain to break into my little cottage. कहता और तुम कहाँ पहुँचे हो अपने ब्रेन का दिमाग कर यूज़ करके मेरे यहाँ मेरी छोटी सी कॉटेज में पहुँचने के लिए किसी को ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ी, ज़्यादा बढ़िया दिमाग की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक इनटू मीन्स टू एंटर। Okay, so intruder says, when you know why I have broken into your little cottage, you'll be surprised, and it won't be a pleasant surprise. तो इंट्रूडर सेज कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे कॉटेज में क्यों आया हूँ तुम सरप्राइज हो जाओगे, और ये तुम्हारे लिए कोई अच्छा सरप्राइज नहीं होगा। गैरेट, विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। बाय द वे, व्हाट particular line of crime do you embrace, or aren't you a specialist? वो कहता इतनी देर से तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूँ, ये तो समझ आ ही गया कि तुम मेरे यहाँ पे क्यों आए हो, बट कहता तो ये भी बता दो कि तुम किस तरह का क्राइम करते हो। एम्ब्रेस मीन्स अडॉप्ट, तो किस तरह का तुम क्राइम करते हो, या तुम कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो। इंट्रूडर, माई स्पेशलिटी माई स्पेशलिटीज इज़ ज्वेल रेबरी। तो वो कहता मैं ज्वेल जो है वो चुराता हूँ। योर कार विल डू मी ए ट्रीट, जो तुम्हारी जो कार है वो मेरे बहुत काम आएगी। इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस, डैंडी मीन्स एक्सीलेंट। तो वो कहता ये जो तुम्हारी कार है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा बढ़िया बस है। Garrett, I'm afraid jewels are few and far between in the wilds of Essex. तो Essex वो कहता है ये जो एरिया है यहाँ पे ज्वेल्स तो बहुत
कम मिलते हैं, दूर दूर तक तुम्हें ज्वेल्स नहीं मिलेंगे. इंट्रूडर, सो आर द कॉप्स, आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल. कहता और यहाँ पे जो कॉप्स हैं, पुलिस मैन हैं, वो भी नहीं आते हैं. जैसे कि यहाँ पे ज्वेल्स नहीं है, इसी तरह यहाँ पे पुलिस मैन नहीं आते हैं, और यहाँ पे मैं थोड़े टाइम के लिए रिटायर होके रह सकता हूँ. गैरेट, यू मीन टू लिव हियर विद मी? अ ट्राइफल सडन इजंट इट? यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड. कहता तुम यहाँ मेरे साथ रहना चाहते हो. ट्राइफल मीन्स कि अजीब सी बात है, झगड़ा हो जाएगा हमारा. यू हैव गॉट नॉट इन्वाइटेड, कहता मैंने तुम्हें किस तो इन्वाइट ही नहीं किया. इंट्रूडर से, यू वोंट बी हियर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क. कहता तुम यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रहोगे, इसीलिए तुमसे मैंने पूछने की कोशिश नहीं की. कैरेट, व्हाट यू मीन? तो वो कहता तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? इंट्रूडर सेज, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू. कहता ये तुम्हारा बड़ा सरप्राइज है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ. गैरेट सेज, अ लिटिल हार्श इजंट इट? कहता ये बहुत बुरी बात है कि तुम ज़्यादा ही हार्श हो रहे हो. Intruder, with heavy sarcasm, yes, yeah, I'll be sorry to do it. I have taken a fancy to you, but it's just got to be done. वो कहता है sarcasm क्या होता है कि जब when you mean something else, to be critical, कि जब आप कहने का मतलब उसके बिल्कुल opposite हो. तो वो कहता है कि हाँ मुझे इस चीज़ का अफसोस है, मैं जो है तुम्हें लाइक करने लगा हूँ. फैंसी टू यू मीन्स टू लाइक. तो कहता मैं तुम्हें अब लाइक करने लग गया हूँ, बट ये काम मुझे करना ही पड़ेगा. गैरेट, वाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स? इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग. ग्रेव मीन्स सीरियस. वो कहता तुमने जो, गैरेट ने कहा कि तुमने जो इतने और क्राइम किए हैं उसमें एक मर्डर भी क्यों ऐड करना, बहुत सीरियस स्टेप तुम उठाने वाले हो, कदम उठाने वाले हो. इंट्रूडर सेज, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन. कहता मैं कोई मस्ती के लिए नहीं कर रहा. आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ. मुझे ऑलरेडी ढूंढा जा रहा है, मेरी ऑलरेडी हंट किया जा रहा है, मतलब मुझे तलाश की जा रही है. आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी. मैंने किसी का मर्डर कर दिया था, उसके लिए मुझे तलाशा जा रहा है. एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस. और कहता किसी मर्डर के लिए मुझे वो बार बार हैंग नहीं कर सकते. एक ही क्राइम के लिए अगर मैं एक को मार दूंगा तब भी मुझे हैंग करेंगे, अगर दो को मारूंगा तब भी मुझे हैंग करेंगे. वो मुझे दो बार हैंग नहीं कर सकते, मतलब दो बार हैंग करके मार नहीं सकते. Garrett, you are planning a gratuitous double. So to speak, admitted you have nothing to lose, but what have to gain? तो वो कहता कि तुम एक ग्रेटिट्यूस डबल कर रहे हो, मतलब तुम बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम कर रहे हो, ज़्यादा अपनी जो क्राइम है उसको डबल करे जा रहे हो. वो कहता मान लिया कि तुम्हारे पास लूज़ करने गंवाने के लिए कुछ नहीं है, मगर तुम्हें मुझे मारने से मिलेगा क्या? इंट्रूडर सेज, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन. मुझे आज़ादी मिलेगी. एज फॉर माई सेल्फ, अगर मैं अपनी बात करूँ, आई एम अ पुअर हंटेड रैट. मैं एक पुअर हंटेड रैट हूँ जिसको कि ढूंढा जा रहा है. एज विंसेंट चार्ल्स आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग. अगर मैं विंसेंट चार्ल्स गैरेट बन जाऊँगा, मैं कहीं भी आराम से घूम सकता हूँ और मुझे कोई पकड़ेगा भी नहीं. आई कैन ईट वेल एंड स्लीप. मैं आराम से खा सकता हूँ, सो सकता हूँ. एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कोप. और अगर मैं किसी पुलिस वाले को देखता हूँ तो मुझे भागने की भी ज़रूरत नहीं है. Garrett, in most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. तो वह कहता कि ज़्यादातर मेलोड्रामाज में, जो ड्रामाज होते हैं उनमें क्या होता है, जो विलेन होता है वो बहुत ज़्यादा फुलिश दिखाया होता है, और वो क्या करता है अपनी जो किलिंग होती है उसको ज़्यादा देर डिले कर देता है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरीटेट हो जाता है. यू आर मच लकिया. तो वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा लकी हो इस मैटर में. Intruder, I'm okay. I have got a reason for everything. I'm going to be Vincent Charles Garrett. See, I've got to know what he talks like. Now I know that posh stuff comes easy. This is Mr. V.C. Garrett speaking. Pantomime of phoning in imitation cultured voice, and that's not all. He stands up. Get up a minute. Garrett stands, and now take a look at me. इंट्रूडर सेज आई एम ओके. तो कहता मुझे हर चीज़ जो भी मैं कर रहा हूँ उसके लिए मेरे पीछे मेरे पास रीज़न है. मैं विंसेंट चार्ल्स गैरेट बन जाऊँगा, ठीक है. और मुझे ये भी पता चल गया वो कैसे बातें करता है. मुझे सब पता है कि वो पोश स्टाफ, पोश मीन्स रिच, तो मतलब जो रिच वे है उसका टॉकिंग का
वो आराम से आ जाता है, मतलब आराम से किया जाता है, और वो पैंटोमाइम करना शुरू कर देता है। पैंटोमाइम मीन्स कॉपी, इमिटेशन, मिमिक्री करनी शुरू कर देता है उसकी, गैरेट की। एक तरह से कल्चर्ड इमिटेशन, कल्चर्ड वॉइस निकाल के वो गैरेट के साथ की कॉपी करना शुरू कर देता है, फ़ोन पे बात करने की कोशिश करता है, दिखाता है कि दिस इज़ मिस्टर वीसी गैरेट स्पीकिंग, एंड दैट्स नॉट ऑल। कहता है यही नहीं है, वो क्या होता है, वो खड़ा हो जाता है और वो गैरेट को बोलता है कि थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ। गैरेट भी खड़ा हो जाता है। नाउ टेक अ लुक एट मी, तो गैरेट को वो बोलता है कि अब मेरी तरफ देखो। गैरेट, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव। डेकोरेटिव मीन्स अच्छी ड्रेस्ड, प्रॉपरली ड्रेस्ड। गैरेट कहता है तुम अच्छे से ड्रेस्ड नहीं हो। इंट्रूडर, नो, वेल दैट गोज फॉर यू टू। I've only got to wear specs and I'll be enough like you to get away with it. कहता वो तुम्हारे लिए भी बात एप्लीकेबल है। तुम्हारे लिए मुझे क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ स्पेक्टिकल्स पहनना पड़ेंगी और मैं तुम्हारे जैसा लग जाऊंगा, तुम्हारे जैसा दिखने लग जाऊंगा और मैं कहीं भी जा सकता हूँ। गैरेट, व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, दे लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। कहता अगर तुम अपने क्लोथ्स के बारे में, तुम्हारे क्लोथ्स तो देखो, वो तुम्हें आराम से पकड़ लेंगे अगर तुम केयरफुली नहीं रहोगे। तो हियर यू कैन सी इन द बिगिनिंग, द इंट्रूडर वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू गैरेट। अब गैरेट जो है वो उसको अपनी बातों में उलझाया जा रहा है, उसको बातों में डाले घुमाए जा रहा है, और ही इज़ ओनली वेरी इजीली ट्रैप्ड इन हिज ट्रैप। तो वो कहता अगर तुम अपने कपड़ों का ज़्यादा ध्यान नहीं रखोगे तुम्हें आराम से पकड़ लेंगे। सो इंट्रूडर सेज दैट्स बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन। तो वो कहता उसकी कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे जो कपड़े हैं मुझे फिट हो जाएंगे। गैरेट, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। कहता जो मैं कहना चाहता था तुमने वो रिमार्क नहीं समझा। आई सेड यू आर लकियर दैन मोस्ट मेलो ड्रामेटिक विलेंस। तो मैंने कहा कि तुम जो हो वो ज़्यादातर जो मेलो ड्रामेटिक विलेंस होते हैं, ओवर एक्टिंग करते हैं, जो ज़्यादातर सीरियल्स में या ड्रामाज में विलेंस होते हैं, उनसे ज़्यादा लकी हो। इट वॉज़ नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस। ये जो मैंने कहा था ये तुम्हारी जो इंटेलिजेंस थी, तेज़ दिमाग था या क्लेवर दिमाग था, उसको मैंने तारीफ़ नहीं करी थी। यू वॉन्ट मी किल फॉर अ वेरी गुड रीज़न, कि तुम मुझे कोई अच्छे रीज़न के लिए नहीं मार रहे हो। इंट्रूडर, सो व्हाट्स दैट्स वॉट यू थिंक। कहता अच्छा तुम्हें ये लग रहा है। गैरेट, यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर। कहता तुम मुझे जानो दोगे और भगवान का शुक्र है कि तुमने अभी तक मुझे शूट नहीं किया। इंट्रूडर, कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी। कहता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, फटाफट से बता दो, अब ये जो बातचीत है मुझसे बोर हो रहा हूँ। Garrett, your idea is to elude the police by killing me and taking on my identity. Elude means escape. तो वो कहता तुम्हारा प्लानिंग ये है कि तुम मुझे मार दोगे और पुलिस से बच जाओगे मेरी आइडेंटिटी लेके। इंट्रूडर, येस आई लाइक द आइडिया। कहता मुझे ये चीज़ सब पसंद आई। गैरेट, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू। कहता तुम्हें पक्का यकीन है कि इससे तुम्हारी हेल्प होगी। इंट्रूडर, नाउ लिसन हेयर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान। कहता मैंने ये सारी प्लानिंग की हुई है। आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैंने टाउन में पूरी एक जॉब की थी। थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, कुछ गलत हो गया, मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, डॉज मीन्स रन, और तब से मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ भागे जा रहा हूँ। गैरेट, एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू, और ये तुम्हारी जो डॉजिंग है, रनिंग है, तो वो तुम्हें यहाँ लेके आई है। इंट्रूडर, इट ब्रॉट मी टू आइजलबरी, दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार। मैं आइजलबरी जो रन करके रनिंग करके मैं आइल्सबरी पहुँचा और वहाँ पे मैंने तुम्हें कार में देखा। टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, दो और लोगों ने तुम्हें देखा और उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। आई लिसन, मैंने उनकी बातें सुनी। इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वेयर, क्वेयर मीन्स स्ट्रेंज, और ऐसे उनकी बातें सुन के लगा कि तुम थोड़े स्ट्रेंज इंसान हो, काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन, जैसे कोई कि मिस्ट्री मैन होता है। गैरेट, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। कहता वो रहस्य मैं क्यों मिस्ट्री मैन हूँ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहूँगा।
इंट्रूडर डिसरिगार्डिंग हिम, तो वो उसकी बात को अनसुना कर रहा है। यू फ़ोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली, तुम अपने ऑर्डर्स फ़ोन करते हो और कई बार तुम अचानक से कहीं चले जाते हो। कम बैक जस्ट द सेम, और इसी तरह बिना बताए, किसी को बताए अचानक से तुम वापस आ जाते हो। दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वॉन्ट टू नो, और यही चीज़ें मैं जो जानना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स, तो जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना था वो सबसे ज़्यादा लकीस्ट टाइम था मेरे लिए, luckiest मोमेंट था। गैरेट apparently you haven't the intelligence to ask why I'm invested in this cloak of mystery, वो कहता अब तुम्हारी पास इतना दिमाग नहीं, इतनी क्लेवरनेस नहीं थी कि तुमने ये भी नहीं पूछा कि मैं इस तरह की मिस्ट्री में क्यों उलझा हूँ, मैंने इस तरह का मिस्ट्री का चोगा क्यों पहना हुआ, क्लोक क्यों पहना हुआ है। इंट्रूडर preparing to shoot, as I said before this conversation bores me, तो वो उसको मारने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। वो कहता है जैसे मैंने तुम्हें पहले बोला है, ये कॉन्वर्सेशन से मैं बोर हो रहा हूँ। गैरेट डोंट बी अ फूल, इफ़ यू शूट ही विल हैंग फॉर श्योर, इफ़ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स। गैरेट कहता पागल मत बनो, अगर तुम मुझे शूट करोगे तुम पक्का ही तुम्हें मारा जाएगा, लटका दिया जाएगा। अगर एज तुम्हारे इंट्रूडर बन के नहीं तो विंसेंट चार्ल्स गैरेट बन के तो पक्का ही तुम्हें लटका दिया जाएगा। इंट्रूडर व्हाट्स दिस, तो कहता है क्या बातें कर रहे हो। गैरेट दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, कहता अब ये तुम्हारे लिए बिग सरप्राइज है। आई सेड यू वोंट किल मी एंड आई वॉज राइट, मैंने कहा था कि तुम मुझे मारोगे नहीं, और मैं बिल्कुल सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे एंड गॉन टुमारो, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं आज यहाँ हूँ और कल चला जाऊँगा। नेवर सी ट्रेड्स पीपल, कभी ट्रेड्स पीपल से नहीं मिलता। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, तुम कहते हो कि तुम्हारी जो आदतें हैं मुझे सूट करती हैं, मेरी जो आदतें हैं वो तुम्हें सूट करेंगी। यू आर अ क्रुक, तुम क्या हो, एक क्रिमिनल हो। तो डू यू थिंक आई एम संडे स्कूल टीचर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक इनोसेंट इंसान हूँ। संडे स्कूल टीचर मीन्स इनोसेंट पर्सन को बोलते हैं। तो कहता तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई संडे स्कूल टीचर हूँ, कोई इनोसेंट इंसान हूँ। द गेम इज़ अप एज फार एज आई एम कंसर्न, जितनी अगर मेरे बारे में बात की जाए तो गेम ख़त्म हो गई है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, मेरे साथ कुछ गलत हुआ। आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे, मेरे साथ जो गलत हुआ उसका जवाब मैंने बुलेट से दिया और वहाँ से भाग गया। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, और दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से उन्होंने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया। एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ट, और उनको वो चीज़ें मिल गई जो मेरे आदमियों को जला दी जानी चाहिए थी। टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, मुझे लगता है कि आज कुछ लोग मेरे पास आएंगे, मतलब मुझे पकड़ने के लिए लोग आ जाएंगे। माई बैग इज़ पैक्ड एंड रेडी टू क्लियर ऑफ, और मेरा बैग पैक है और मैं अभी भागने वाला हूँ। दैट इट इज़, और वो अपना बैग उसको दिखाता है। इंट्रूडर इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज़ अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस, कहता तुम्हारा ये जो तुम दिखा रहे हो ये बैग है और ये मेरे हाथ में है जो वो गन है। गैरेट दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, कहता है ये डिस्गाइज आउटफिट है, मतलब मैं अपनी आइडेंटिटी जो है वो छिपा सकता हूँ। फॉल्स मुस्टैशेस, और मेरे पास नकली मूछें हैं, एंड वॉट नॉट, और क्या नहीं है मेरे पास। व्हाट डू यू नाउ डू यू बिलीव मी, अब तुम्हें मेरे पे विश्वास आया। इंट्रूडर म्यूजिंगली, तो वो अपने आप में अब सोच रहा है, थॉटफुल हो रहा है। आई डोंट नो, वो कहता गैरेट फॉर गॉड से क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो। मडल्ड मीन्स कन्फ्यूज, कहता भगवान के लिए ये जो तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म करो और चलो चले। कम विद मी इन कार, मेरे साथ कार में आओ। आई कैन यूज़ यू, मैं तुम्हें यूज़ कर सकता हूँ। इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, अगर तुम्हें लगा कि ये सारा नकली है, कि मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ, कोई ट्रैप बिछा रहा हूँ। फ्रेम मीन्स ट्रैप, तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं ट्रैप कर रहा हूँ, यू हैव गॉट मी इन द कार, तुम मुझे कार में पकड़ सकते हो। एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, और तुम्हारे पास अभी भी एक गन है। इंट्रूडर मे बी यू आर राइट, वो कहता है शायद तुम सही बोल रहे हो। गैरेट देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, कहता टाइम ना वेस्ट करो। वो जाता है और अपनी हैट और बैग उठा लेता है। इंट्रूडर केयरफुल बॉस आई एम वॉचिंग यू, कहता ध्यान से कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। गैरेट आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन मेन रोड, वहाँ मैंने मेन रोड पे एक बंदा रखा हुआ है, इंसान रखा हुआ है। ही विल रिंग अप ही सी इफ़ ही सीज द पुलिस, वो मुझे इन्फॉर्म कर देगा, मुझे फ़ोन करेगा अगर उसको वो पुलिस को देखता है। बट आई डोंट वांट टू लीव,
मैं मगर जाना नहीं चाहता। टेलीफोन बेल रिंग्स, और टेलीफोन की जो बेल है वो बजती है। कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, चलो मेरे साथ, वो हमारे पीछे हैं। थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैरेज, और यहाँ से हम सीधे गैरेज में पहुँच जाएंगे। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, कहता मुझे कैसे विश्वास होगा कि तुम सच बोल रहे हो। गैरेट, ओह डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योर सेल्फ, कहता फूल मत बनो, तुम ही खुद ही देख लो। गैरेट ओपन डोर्स एंड स्टेप्स अवे, वो गैरेट जो है वो दरवाज़ा खोलता है और वो पीछे हट जाता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्टेड, वो इंट्रूडर जो है वो आगे तरफ झुकता है देखने के लिए। विद हिज साइट वर्ड्स गैरेट, तो वो उसकी जो साइड है वो गैरेट की तरफ ही है। बट विद द रिवॉल्वर रेडी, और उसके हाथ में रिवॉल्वर रेडी है। एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे ही वो अपना हेड जो है वो टर्न करता है, गैरेट गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, तो गैरेट जो है उसको कबर्ड में धक्का दे देता है। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और उसके हाथ से जो रिवॉल्वर है वो गिर जाती है। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट, वो दरवाज़ा बंद कर देता है और उसको लॉक कर देता है। पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू द फोन, रिवॉल्वर उठाता है, फ़ोन की तरफ जाता है। वेर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर, और वहाँ पे वो फ़ोन के पास खड़ा हुआ जो गन है वो कबर्ड की डोर की तरफ करके रखता है। इंट्रूडर रैटल्स द डोर एंड शाउट्स, तो इंट्रूडर जो है वो डोर को खड़का रहा है और चिल्ला रहा है, लेट मी आउट ऑफ हियर, वो कहता है यहाँ से मुझे निकालो। गैरेट, हेलो, यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, तो वो फ़ोन पे कह रहा है कि सॉरी मैं तुम्हारे पास प्रॉप्स नहीं पहुंचा पाया। प्रॉप्स क्या होती हैं? वो सारी चीज़ें जो कि प्ले में यूज़ होती हैं, जैसे नकली मुस्टैश हो गया, नकली बेयर्ड हो गई, या और कोई जैसे कोई अगर कोई बर्ड बना हो, उसके जो नकली विंग्स बने होते हैं, या जो ड्रेसेस होती हैं, उसको सभी को प्रॉप्स बोलते हैं। तो वो कहता है तुम्हारे पास में टाइमली रिहर्सल के लिए प्रॉप्स नहीं पहुंचा पाया। आई हैव गॉट ए स्पॉट ऑफ बदर, तो मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई थी। क्वाइट अम्यूजिंग, और वो थोड़ी फ़नी सी है। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, उसको ये जो स्टोरी है इसको मैं नेक्स्ट प्ले में यूज़ करूँगा। लिसन, कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सर्जन टू कम अप हेयर एट वंस, तो वो कहता है कि तुम, सर्जन मीन्स कॉप, पुलिस वाला, तो वो कहता है कि जो सिपाही है उसको बोल दोगे यहाँ, हमारा जो फ्रेंड है सर्जेंट, उसको यहाँ बोल दोगे कि वो जल्दी से यहाँ आ जाए। यू विल फाइंड प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, तुम्हें शायद वो पब्लिक बार में मिल जाए। सो दिस वॉज द स्टोरी, this was the play written by Douglas James. I hope you have understood it and you have liked it as well. If you I made the things clear to you, and if no confusion was left on my part, please do like my this video and subscribe to my channel. If you didn't, if there was something that was left from my part, for that also the comment section is yours. So thank you and have a nice day. Enjoy your day. Bye bye, take care.